Shri Ram. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guru Namaha. Ram Ram to everybody joining this session. We are at verse 2.52, Slok Sankhya 52, chapter 2, Sankhya Yoga, Transcendental Knowledge. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. Lord Krishna is saying about buddhi yoga that from intellect, buddhi ke dwara, from intellect, how can we control our mind? हम बुद्धि के द्वारा मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? This is all about Lord Krishna is saying to Arjuna that how can we control our fluctuations of mind, attachments of mind, and it is going here and there, keep on moving. So this, how can we control? By our intellect. Yada te moh kalilam, we all are mired with mud at the level of mind. Moh kalilam, that means attachment of mind, it is mired, kalilam, with mud of our, that is lower virtues. Buddhir vyatitarishyati, the person when crosses our levels of mind by using intellect, जब व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन और उसके विचारों को, उसकी उड़ान को नियंत्रित कर लेता है. बुद्धिर व्यतितरिष्यति, by intellect when we control over our mind, get control. When we crosses, that means we go higher level. So when we go at higher level, then we do not mind the things at lower level. Then our vision changes, our outlook changes. The person who is flying on aircraft, so a different view, aerial view of the any that is terrestrial view, whatever is in ground is seen. In the similar manner, when we are at higher level, then things changes, our view changes, point of view changes, outlook changes. So when a person by using intellect crosses the mires of mud which are wrapped around mind, tada gantasi nirvedam, then that person, tada gantasi, then he goes to be different. Then that person is not same. When he is using buddhi, then that person is now different, and he is now having no need. Shrotavyasya shrutasya cha. He has no need to be heard anything or to what has been heard earlier. तब वह व्यक्ति उसको कुछ सुनने योग्य नहीं रह जाता, और जो सुना हुआ है वह उसके योग्य नहीं रह जाता. जो बुद्धि योग में स्थित है, जिसकी बुद्धि भली प्रकार से परमेश्वर के प्रणिपात है, समर्पित है, द पर्सन हु इज कंप्लीटली सरेंडर्ड, ऑफर्ड एट द फीट ऑफ गॉड, that person has no need of these Vedas. That means very well, the person who is at the feet of God, that person has no need for any of ups and downs of the life to control it, because God is there to look after all these situations, and his mind is getting strengthened by the Lord. Now the literal meaning is this: when your mind go beyond the turbidity of delusion, then you will acquire this passion for what has to be heard and what has been heard.
जब तक हम मन के स्तर पर रहते हैं तो उस समय हमारे अंदर एक पैशन रहता है, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन जब हम बुद्धि में स्थापित हो जाते हैं, when we are established at mind, at that time nothing is to be heard. We lose our passion because we are at the feet of God and we have no such passion. हमारे अंदर इस बात की इच्छा नहीं होती कि ये वेद पढ़ लें, इसको पढ़ लें, उसको पढ़ लें, क्योंकि हम प्रणिपात होना चाहते हैं और प्रणिपात होते हैं। हमारी निष्ठा अब धीरे धीरे अभिप्सा में बदलने लगती है। What is our allegiation? It now changes, that it becomes strengthened. So at the level of intellect, our all fluctuations become static. हम भली प्रकार से स्थापित हो जाते हैं और मन और इसकी गतियों को कंट्रोल कर लेते हैं। Now, Sri Krishna has previously said that people who are attached to worldly enjoyment get attached to its flowery words of the Vedas, that when you do this, you will get this. अगर ऐसे पूजन करोगे लक्ष्मी का तो ये मिलेगा, इनका पूजन करोगे शारदा का तो ये मिलेगा. So 5 flowery words of Veda. There are the systems that what you do, then what you get. So there are the actions which have their motives, their aims, their goals. There are certain shlokas, mantras are there in Ved which are for this. And 10,000 mantras are for, that is offering, for surrender, that is later on. But for 90,000, most of the sections are telling you, if you do this, then you will get this. तो ऐसे मंत्र वेदों में क्यों दिए गए हैं 90,000 कि तुम यदि ये करोगे तो ये पाओगे? क्योंकि यदि हमें कुछ मांगना भी है तो हम ईश्वर से मांगे, इसलिए वेदों में ऐसे मंत्र भी दिए, हम इधर उधर ना भटके। फिर जब हम उनसे पार होते चले जाते हैं तो वे 10,000 मंत्र भी हैं कि उस समय फिर कामना गिर जाती है और हम ईश्वर के और अधिक प्रणिपात होते हैं। So Sri Krishna has previously said that people who are attached to worldly enjoyment get attached to flowery words of Veda, which propagate ostentatious rituals for gaining worldly opulences. So we are doing rituals, we are doing havan, we are doing yagya to do. That is the pyres are said. We are something now adding to pyre to get something in a systematic way, and in mantras we are doing so. So however, when we are intellect with our we are illuminated by our intellect, जब हम अपनी बुद्धि से प्रकाशित होने लगते हैं, भगवान ने हमको बुद्धि दी है तो हम बुद्धि से प्रकाशित हो। हमें जितने भी यंत्र दिए गए हैं वे यंत्र बेकार के नहीं हैं। मनुष्य को बुद्धि का जो यंत्र दिया गया है उसका उपयोग करके हम भगवान के चरणों में स्वयं को भली प्रकार से स्थापित कर सकते हैं। So when we are getting established, become static by using our intellect, यही बुद्धि योग है। सम अवस्था में आ जाना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सम अवस्था में आ जाना कि हमारा जीवन क्यों है, किस लिए मिला है, इन सभी बातों को ध्यान में रखना। तो जैसे जैसे हम प्रणिपात होते हैं, समर्पण ही कुंजी है, समर्पण ही भगवान का द्वार है। बहुत अधिक पढ़ना, बहुत अधिक और पढ़ लेना और देख लेना, उनकी आवश्यकता नहीं है। हम बुद्धि का उपयोग करके भगवान के प्रणिपात हो सकते हैं और अपने मन की जो इधर की उथल पुथल है उसको आसानी से शांत कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु स। इस शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। जो सूक्ष्मतर होता है, what is finer and microscopic, that is more powerful. So our intellect is more powerful than our mind. हमारी बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और ये इसकी उथल पुथल को आसानी से नियंत्रित कर सकती है। One whose intellect is illuminated with spiritual knowledge no longer seeks material sense pleasure, knowing them to be harbingers of misery. We all know that our mind leads to misery. So
we are now not being attracted to these miseries. We know that these fluctuations ultimately leads us to misery. ये हमको कृपणता की ओर ले जाते हैं और इसलिए वो बुद्धि में भली प्रकार से स्थापित रहता है और बुद्धि को मन का दास नहीं बनता. Now next verse is 2.53. श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि. श्रुति विप्रतिपन्ना, that is fruitive sections of Veda. Pratipanna, don't getting allured. Whatever is Shruti. Shruti means it is all Vedas are Shruti only. On the basis of memory, it has been written later on. So the person who is not allured with the fruitful results and rituals of Veda, yatha sthasyasi, the person then remains steadfast and not getting fluctuated by the fruitive results of this way. You should do this to get this and these worldly pleasures. तुम यदि इस संसार के सुख साधन चाहते हो तो ऐसे ऐसे आयोजन करो, ऐसे ऐसे यज्ञ करो और ये पा जाओगे. तो ऐसे वेद में बहुत सारे विधान हैं और उसके लिए अलग अलग देवता भी हैं. जब हम इन सब से ऊपर हो जाते हैं, समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, एट दैट टाइम when our intellect rises above mind, जब हमारी बुद्धि मन से ऊपर उठ जाती है तो वो समाधावचला, then at that situation we enter into divine consciousness. समाधावचला, समाधव अचला, that means हम भगवती चेतना में प्रवेश कर जाते हैं. बुद्धि, that means by the help of our intellect, बुद्धि की मदद से, बुद्धि के योग से, योग ही वर्ड है, बुद्धि से हम योग कर सकते हैं प्रभु से. तो बुद्धि से हम योग करके समाधव अचला, वो एक ऐसी स्थिति है जो अचल स्थिति है, डिवाइन कॉन्शियसनेस, भगवती चेतना की अवस्था में आ जाते हैं. योगम अवाप्स्यसि, एंड we get attached. योगम मीन्स जुड़ना. So spark हमारी आत्मा परमात्मा से योग कर लेती है. अवाप्स्यसि, you will attain. What is the literal meaning of this verse? That is, when your mind that has become bewildered by hearing will become unshakable. Our mind is bewildered that if we try this, then we will get this. By such things our mind is bewildered. But when your mind that has been bewildered by hearing will become unshakable and steadfast in self. जब हम steadfast in self, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, हमको बाहरी चीजों से कोई लेना देना नहीं रहता. दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ. So we roam, we wander here and there without any kind of interest in them. We wander as an agent of God. हम भगवान के यंत्र के रूप में विचरण करते हैं, भगवान की सृष्टि का आनंद लेते हैं, इसकी रचनाओं का सृजन का आनंद लेते हैं, परंतु इनसे अधिक हमें लेना देना नहीं रहता. जैसे कि हरिद्वार की ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति चित्रों को निहारता तो है, बाहर के कितने अच्छे दृश्य हैं, लेकिन उससे उसका खास लेना देना नहीं रहता, उसकी मंजिल हरिद्वार रहती है. उसी प्रकार से हमारी मंजिल कुछ और है, हम इनमें उतरा नहीं करते जो संसार के प्रलोभन है. So in that manner, when our mind makes us stabler, and we know that what is our focus, what is our goal, where I have to go, we are not fluctuated by the worldly pleasures. At that time, then you will attain yoga that arises from discrimination. So we well know what is true, what is false. ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वन्यो तत्त्वदर्शिकी. So we know
असत की सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं. What is true and what is false, what exists and what does not exist, and we properly manage to go in righteous path. As sadhak advances on the spiritual path with their minds, their relationship with gods becomes stronger. At that time, they find the Vedic rituals which were previously performed by the cumbersome and time-consuming process. It is not easier to perform Vedas. It is not that when we are arranging some kind of yagya havan in our home, then it is easier. We have to do a lot for this and make many preparations for this. It is cumbersome process. So, but at the time we use our intellect, we leave all these. We have now no fear for anything. Even we are having no attachment for worldly pleasure. So, they then wonder whether they are obliged to keep performing the rituals along with their devotions. तब उन्हें ये लगता है क्या उन्हें भगवान के प्रति जो प्रेम है उसके अतिरिक्त ये भी कुछ करना चाहिए? तो नहीं, they reject the ritual and dedicate themselves fully to sadhana. क्योंकि ये सब माया भगवान की ही बनाई हुई है, तो वो माया का दास न होकर मायापति का दास हो जाता. Such people will find the answer to their doubt in this verse. Shri Krishna says that to be fixed in sadhana without being allured to fruitive section, you should simply go to the feet of God and not get allured by these pompous things. So these should not be. The sadhak should always use the intellect, not should be like flow in the energy of mind. हमें अपने मन के द्वारा बह नहीं जाना चाहिए और बुद्धि के द्वारा स्वयं को भली प्रकार से प्रभु के चरणों में स्थापित कर लेना चाहिए. बुद्धि श्रेष्ठ है तो वो हमको सही प्रकार से लीड कर सकती है, आगे ले जा सकती है. वर्स 2.54. स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम. So in this verse Arjun is asking, when Lord Krishna has said the person who is using his intellect, जो व्यक्ति जो साधक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है वो भगवान से युक्त हो जाता है, तो वो स्थिति को समझने लगता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है. कोई भी चीज कोई परिस्थिति आती है तो वो किस लिए आती है? ये हमको सिखाने के लिए आती है. इट इज टू मेक अस लर्नड एंड नॉट गेट फ्लक्चुएटेड बाय इट. लाइक ए सेलर एंजॉयज द अप्स एंड डाउन्स ऑफ वेव. एक नाविक लहरों के उतार चढ़ाव को आनंद से देखता है और आगे बढ़ता चला जाता है. वो उनके द्वारा बहा नहीं लिया जाता, ना उनसे भयभीत होता है, क्योंकि वो उस मालिक के जिसके द्वारा ये लहरें भेजी गई हैं उस सागर के प्रणिपात है. इन द सिमिलर मैनर, बाय यूजिंग इंटेलेक्ट वी कैन गेट वेल एस्टेब्लिश्ड इन, we become sthit pragya, we become atmanyev atmana tushta. When we reside in our own self, in our soul, and leave the allurings of the mind, that is attachments, then we become sthit pragya. We are at equilibrium. हम साम्यावस्था में आ जाते हैं. साम्यावस्था एक डोर का मध्य का हिस्सा है जिसके एक ओर तो सुख है, दूसरी ओर दुख है. तो जो स्थित प्रज्ञ है वो मध्य में स्थापित रहता है, देखता तो दोनों सिरों को है और उनको महसूस भी करता है, लेकिन उसके द्वारा वो प्रभावित नहीं होता. उसकी प्रज्ञा चक्षु जग जाती है और वो भली प्रकार से स्थित होता है. Now Arjun is extending the question for this only, that स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव. समाधिस्तस्य केशव. हो द किलर ऑफ केशी डेमन. केशी राक्षस को मारने वाले हे केशव, समाधि में स्थित मनुष्य की किस प्रकार की भाषा होती है, वो किस प्रकार से बोलता और व्यवहार करता है.
समाधिस्थस्य, समाधिस्थस्य, the person who is using intellect is already in बुद्धि योग, वो सम अवस्था में रहता है. That person lives in equanimous way. He is not fluctuated by the miseries and happiness. वो प्रपन्नता और सुख के द्वारा कहा नहीं लिया जाता, उसका चेहरा निष्प्रभावी रहता है, वो मुदित रहता है. That person is always joyful. So that person who is always static, by using the intellect, बुद्धि के योग के द्वारा जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो गया है, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, उस स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा होती है, हाउ दैट पर्सन टॉक्स. So that is one with steady intellect, how that talks. स्थिति धी किम प्रभाषेत, that person who is स्थिति, that means he means enlightened. So that person who is static and enlightened, जो स्थिर है और प्रकाशित है. धी means प्रकाशित, enlightened. So जो व्यक्ति प्रकाशित है और स्थिर है, किम प्रभाषेत, so that person how behaves or talks to others. किम आसीत, how sits, प्रजेत किम, and how walks, कैसे वो चलता फिरता है और कैसे बैठता है. यानी उसका किस कैसे हम पहचाने, how can we recognize that a person is steady in intellect. एक व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, वो बुद्धि के द्वारा योग में स्थित है, उसने बुद्धि योग से ईश्वर की ओर जाना शुरू कर दिया है, हम ये कैसे पहचाने. So that question was asked by Arjuna from Lord Krishna. Arjuna said, "O Keshav, what is the description of a man of steady wisdom who is self-absorbed?" That is other synonym of intellect is wisdom. That is again प्रबुद्ध. That means जो हृदय का उच्च स्तर है, वो प्रबुद्ध चेतना है. बुद्धि के ऊंचे स्तर को ही हम इंटेलेक्ट कहते हैं. That is also known as wisdom. So Arjuna says, what is the description of a man of steady wisdom who is self-absorbed? Self-absorbed means आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है, needs nothing extra to gain anything. अंदर की खोज शुरू कर. How does the man of steady wisdom speak? How does he sit? How does he move about? So these questions are the designation sthit pragya, one with the steady intellect, and samadhistha, situated in trance consciousness. What does it mean by trance consciousness? When our soul goes away from our body, it comes out at more higher levels. That is बुद्धि, मानसिक चेतना, बुद्धि चेतना, प्रज्ञान चेतना. That is our sixth sense arises, then goes to Bhagwati chetna. So the person who is using the wisdom now get established in trance consciousness, वो प्रज्ञान चेतना की अवस्था में आ जाता है. उसे कुछ और भी दिखाई देने लगता है जो अन्य लोगों को नहीं दिखता, उसके और विमाएं खुल जाती हैं, अदर डायमेंशंस ओपन अप. ही कैन मेक assessment of the things getting happening in the future, so he can forecast the thing, so he knows extra something more. So that person is now situated in trance consciousness. Soul goes beyond the body. And Arjuna asks a natural question. He wishes to know the nature of a mind of such person who is this in this state. Now the answer is given by Lord Krishna in next verse. अगले श्लोक में भगवान कृष्ण के द्वारा इसका उत्तर दिया गया है. Verse 2.55. श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते. प्रजहाति यदा कामान्, when person leaves all of its desire, person leaves all of nirvichar nirvikal.
when we don't have any vikalp, if God himself is coming, do you want this, do you want this, do you want मेरा दर्शन चाहते हो? प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपके चरणों में ऐसे पड़ा हूं, कुछ चाहिए नहीं। निर्विकल्प, इसी चीज की, न मोक्ष की आकांक्षा है, न प्रभु से मिलने की आकांक्षा है। प्रभु का बनाया हुआ ये मंदिर है, ये सृष्टि है, इसका हम आनंद ले रहे हैं, प्रभु के चरणों में पड़े हुए हैं। वो जो करना होगा करेंगे। हमारा कोई लक्ष्य भी नहीं है, कोई मंजिल भी नहीं है, विचार भी नहीं है कि ये मिल जाए वो मिल जाए। विचार तो तभी होता है जब दौड़ होती है, तो अब कैसे चले उसका विचार। हमारी दौड़ ही नहीं है, हम आत्मा से आत्मा में स्थित हैं, हम यही हैं। हम न भूत में हैं न भविष्य में हैं। नॉट वी आर इन पास्ट, नॉट वी आर इन फ्यूचर, वी आर ऑलवेज ब्रीथ बाय ब्रीथ, वी आर हियर ओनली। अभी इस सांस में है, अगले पल अगली सांस में। सो वी आर निर्विचार, having no thoughts, always getting surrendered to the feet of God, and nirvikalp, having no any option. We do not desire anything. Whatever God is giving, we are accepting thankfully from God. प्रजहात यदा काम, जब व्यक्ति अपनी मनोगत सभी कामनाओं का परित्याग कर देता है। कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन से उत्पन्न हुई, मन किसका गुलाम है? मन और इंद्रियां, ये इस शरीर में है। तो मन क्या है? इंद्रियों के साथ जाना चाहता है, और इंद्रियां सुख चाहती हैं। तो मन एक तरह से ऊंचा नहीं उठ पाता है। मन और बुद्धि के बीच बहुत ज्यादा अंतर है। तो मन बुद्धि के साथ नहीं जाना चाहता है, जबकि मन के आसपास ही इंद्रियां, तो वो इसके साथ इसका गुलाम बना रहता है और इसकी तीमारदारी किया करता है। सो मन इज ऑलवेज, माइंड ऑलवेज गोज विद आवर सेंसेस एंड वांट टू ग्रैब द एल्योरिंग्स, द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। वो संसार की सुख सुविधाओं को पाना चाहता है। लेकिन व्यक्ति जब मनोगत सभी इच्छाओं का, कामनाओं का परित्याग कर देता है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, and from his own soul or her own soul is self-satisfied, self-contained in himself. When the person renounces all worldly pleasure and gets satisfied in himself, sthit pragyastat uchyate, at that time that person is said to be sthit pragya. At that time the person is said to be steady with intellect. So the literal meaning is, the blessed one says, that means the Lord Krishna says, O Parth, O Pritha Putra Parth, when one fully renounces all the desires that have entered the mind and remains satisfied in self alone by self, then he is called a man of steady wisdom. Now, Sri Krishna begins answering Arjun's question here and continues till the end of chapter. Now, one by one, different features of Sthit Pragya will be explained by Krishna. That what are the question was asked a single shloka, but the features are various. So those features one by one are explained by Sri Krishna beautifully. So these are the parameters, and we should measure ourselves where we stand in this category of Sthit Pragya. So till the end of chapter, each fragment is naturally drawn towards its whole, just as a piece of stone is thrown towards, like a stone falls, then it goes toward due to gravity. In the similar manner, जैसे एक पत्थर धरती की ओर गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिरता है, हमारी आत्मा में भी अपने परमात्मा में जो इसका भंडार है, आत्मा तो उसका एक का है, अपने स्रोत में समाहित हो जाना चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ स्थित प्रज्ञ एंड वेयर इट गोज, वेयर इट वांट्स टू गो। एक स्थित प्रज्ञ क्या चाहता है, किधर जाना चाहता है, किस ओर जा रहा है, ये एवरीथिंग इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय गॉड। मौसी जी, आज कौन भजन गाएगा? आप गाएंगी कि और कोई?
विजय जी गा रही ना? हाँ विजय जी, हाँ विजय जी जुड़ी हुई है ना, विजय जी गाएंगे। विजय जी, हाँ विजय मौसी जी आज हमको भजन सुनाएंगे। श्री राम, सभी को राम राम। तारों में चंद्र समान हो तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तारों में चंद्र समान हो तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। इस नैया के पतवार हो तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। इस नैया के पतवार हो तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। एक तेरा ही तो सहारा है, तन मन धन आप पे वारा है। बिना तेरे कोई न हमारा है, बिना तेरे कोई न हमारा है। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तारों में चंद्र समान हो तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। एक अर्ज मेरी मंजूर करो, कुछ तो अब तरस हजूर करो। एक अर्ज मेरी मंजूर करो, कुछ तो अब तरस हजूर करो। मेरे मन का अंधेरा दूर करो, मेरे मन का अंधेरा दूर करो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। मेरे मन का अंधेरा दूर करो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तारों में चंद्र समान हो तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। मुद्दत से थी तलाश मुझे, मिल गए गुरु आप से आप मुझे। मुद्दत से थी तलाश मुझे, मिल गए गुरु आप से आप मुझे। कर कृपा बना लो दास मुझे, कर कृपा बना लो दास मुझे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। कर कृपा बना लो दास मुझे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तारों में चंद्र समान हो तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। इस नैया के पतवार हो तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवम्।
मे दुःखकामार्तनाशनम प्रतिष्ठम भवतु गोविंद, प्रतिष्ठम भवतु गोविंद, नतमदिष्टम नतमदिष्टम, पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा को सब तेरी शरण में, अपने चरणों की भक्ति को। श्री राम 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 भैया। राम 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 दीदी प्रणाम। राम 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 सभी को राम राम भैया राम राम। राम 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 दीदी दीदी राम चरण राम। विजय दीदी राम राम। दीदी राम राम सभी बहनों को राम राम। भैया राम राम बहुत अच्छा। सरिता राम 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 राम। बस थोड़ा हिंदी ज्यादा बोल दी क्योंकि सब हिंदी वाले ही हैं। क्या बोले भैया? हिंदी में ही आज ज्यादा बोल दिया क्योंकि हिंदी समझने वाले ज्यादा लोग हैं सब। अच्छा नहीं बहुत अच्छा सब बहुत अच्छा। सभी सबको को राम राम राम। के साथ मीटिंग अंत करते हैं। हम सबको राम राम। विजय दीदी भजन बहुत सुंदर था। हाँ, अच्छा गाया वो।